Hello students, today I am going to start a new Java learning classes, and in this we will study Java, which we are studying in CBSE, BCA as well as ICSE class 9 and 10th. Okay, so let's start the class. The first thing coming in our mind is what is Java, and the term in itself telling about the concept of Java. The first thing is Java is a programming language. What is Java? Java is a programming language. Programming language in the sense it is used to write the instructions in the forms of program for the computer. That's why it is called programming language. Another thing, platform. That means it creates a platform which made the application which we can run on any types of devices. That means it may be a 32-bit device, 64-bit device, or any type of device. Okay, the next thing, Java is a high level language in the sense we are writing the codes in a general English language, and robust. That means once we just purchase any Java application, we are free from the tension of virus and other things, because it is considered as a virus free applications. Another one, object oriented. What actually Java is doing? Java is considered all the things of the world as a what? Object. That means whatever with the things, it may be a plant, animal, human being, bench, desks, anything, all are considered as a object. And also it is a secured programming language. Secured in the sense when we are writing anything in the Java, it would be impossible to steal the codings of that application, because when we are writing programs in Java, it converts our code into a bytecode, and then after bytecode is running on other objects in the form of object code. So it would be very difficult to convert the or to steal the codes whatever we are writing in that application. Next one, it was developed by Sun Microsystems. It was developed by Sun Microsystem. Actually, Sun Microsystem is developing a big database called Oracle. In 1995, by mistake, the team develops a subsidiary language called what? Java. And another thing, the team was headed by or guided by the James Gosling. That's why James Gosling is considered as the father of the Java. उस टीम का हेड कौन था? जेम्स गॉसलिंग थे, जिसके कारण से उनको डेवलपर ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग बोल दिया गया. अनदर थिंग, जब जेम्स गॉसलिन और उनकी टीम जब ये जावा लैंग्वेज को डेवलप कर रही थी, तो उनके घर के सामने एक ओक ट्री था जिससे ये लोग काफी इंस्पायर्ड थे. दैट मीन्स ओक ट्री को देखे तो वो भी बॉटम अप स्टेज में काम करता है, इसलिए जावा को भी ये लोग क्या किए, बॉटम अप अप्रोच पे काम करने के लिए इनेबल्ड बनाए. एक रूट हेड रहता है जहां से सारे प्लांट्स को वाटर मिनरल्स जाते हैं, और वो क्या होते हैं, फिर वहाँ पे लिप्स में फूड का प्रिपरेशन होता है, फिर वहाँ से जो क्या होते हैं, फूड्स होते हैं, वो आकर के स्टेम्स में, ब्रांचेज में, अलग अलग सेक्शंस में स्टोर किए जाते हैं. रूट में भी स्टोर किया जाता है. ठीक उसी कंसेप्ट को लेकर के इन्होंने क्या किया, जावा को डेवलप किया था, जिस कारण से इन लोगों ने उसका नाम ओक रख दिया. बट बाय मिस्टेक उस नाम से क्या थी, ऑलरेडी एक कंपनी रजिस्टर्ड थी, जिस कारण से इनको और इनके टीम को इस नाम को चेंज करके क्या करना पड़ा, जावा रखना पड़ा. जावा इज ग्रांटेड टू बी अ राइट वंस एंड रन एनीवेयर. दैट मीन्स इसका ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं,
एक बार मात्र लिखना है, और जितना चाहे हम लोग जिस टाइप के मशीन पर चाहे इसको क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर देखा जाए तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मतलब एक बार लिख दीजिए और जहां चाहे जिस मशीन पे चाहे आप क्या कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे चाहे इसको रन कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आता है इसमें क्या हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। कहता है कि जावा इन जावा एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। हम पहले ही आपको बताएं कि जावा क्या करता है, दुनिया के सारी चीजों को एक एज ऑब्जेक्ट कंसिडर्ड करता है, और उस ऑब्जेक्ट पे बेस्ड क्या होता है, हम लोग इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट एक्सटेंड करेगा तो ये भी एक्सटेंड करेगा। डे बाय डे नए नए ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो जावा में भी हमारा डे बाय डे क्या हो रहा है, नए नए एप्लीकेशंस आ रहे हैं। दूसरी बात, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। दैट मीन्स अगर हम चाहें तो इसको अपने 32 बिट सिस्टम पे डेवलप करते हैं तो 64 बिट सिस्टम पे भी इसको रन कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जिस सिस्टम पे हम इसको लिख रहे हैं उसी सिस्टम पे हम क्या करें, इसको रन करें। कहता है उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, तो कहता है कि व्हेन जावा इज कंपाइल्ड इट इज नॉट कंपाइल्ड इनटू प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मशीन। जब हम लोग इसको कंपाइल करते हैं तो ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नहीं रह के क्या होता है, इंडिपेंडेंट बाइट कोड बनता है, और उस बाइट कोड को हम चाहें तो जेवीएम यानी जावा वर्चुअल मशीन के हेल्प से दुनिया के किसी भी डिवाइसेस पे चाहे तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इसका क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। जेवीएम क्या बनाता है, इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। दैट मीन्स कि किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म पे हम इसको रन कर सकते हैं। दूसरा कहता है सिंपल। जावा को जब बनाया गया तो इस चीज को काफी ध्यान में रखा गया कि इट वुड बी इजी टू learn and understand also because it is using the concept of OOPS, that means object oriented programming, and it would be easy to master if you are understanding the concept of OOPS or object, then you can be easily get a mastery over it। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट और उसके एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर, नेचर को अगर हम लोग समझते हैं तो हम लोग इसमें काफी जल्दी क्या कर सकते हैं, मास्टरी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट इन द सेंस, हर ऑब्जेक्ट का क्या होता है, कुछ अपना एट्रीब्यूट्स होता है और कुछ बिहेवियर्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, तो कहता है कि जो एट्रीब्यूट्स होगा हमारा, जैसे उसका नेम हो गया, कलर हो गया, शेप, साइज, ये हमारे क्या हो गए, उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। उसका जो नेचर होगा वो उसका क्या हो जाएगा, बिहेवियर्स हो जाएगा। दैट मीन्स अगर ह्यूमन बीइंग है तो वो डांस कर सकता है, बोल सकता है, रिस्पेक्ट कर सकता है, ये सब उसके क्या हो गए, बिहेवियर्स हो गए। नेक्स्ट आता है सिक्योर्ड। अगर हम जावा में कुछ भी बनाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो एक वायरस फ्री होगा ही, उसके साथ साथ इसमें कभी वायरस लगेगा भी नहीं, क्योंकि इसमें हम जो टेक्निक यूज करते हैं वो पब्लिक की इंक्रिप्शन का यूज करता है। दैट मीन्स ऑथेंटिक होता है, जेन्युइन होता है, इसमें कभी भी कोई वायरस आपको टेम्पर इसको नहीं कर सकता है, डैमेज नहीं कर सकता है, या फिर बोले तो अल्टर भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट थिंग अगर देखेंगे हम लोग तो आर्किटेक्चर न्यूट्रल। दैट मीन्स कि इसका जो डिजाइनिंग है वो काफी ऐसे जनरेट किया गया है ताकि इसमें जो प्रोग्राम्स बने वो किसी भी तरह के सिस्टम पे क्या करें, एग्जीक्यूट कर जाएं। दैट मीन्स जावा कंपाइलर generates and architecture neutral object file format which make the compiled code executable on many processors। ये किसी भी तरह के प्रोसेसर पे, किसी भी टाइप के प्रोसेसर पे क्या कर सकता है, रन कर सकता है। with the presence of what, java real time system। जावा रियल टाइम सिस्टम को यूज करेगा और उस चीज को क्या करेगा, किसी भी तरह के प्रोसेसर्स पे हम लोग कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ये ऑलमोस्ट सारे तरह के डिवाइसेस पे, प्लेटफॉर्म से क्या होगा, ये हमारा रन करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा पोर्टेबल। पोर्टेबल इन द सेंस जब बनाया गया तो कंसेप्ट ये था कि क्या हम लोग उस चीज को फॉलो अप कर पाएंगे कि हर जगह जा करके इसको डिस्ट्रीब्यूटिव बनाएं। तो इसके डेवलपर्स ने क्या किए, जो जेम्स गॉसलिन और उनके टीम ने इस चीज को काफी ध्यान में रखा कि इसको क्या बनाया, हम लोग पोर्टेबल बनाया। दैट मीन्स आर्किटेक्चर न्यूट्रल एंड हैविंग नो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्पेसिफिक मेक्स जावा पोर्टेबल। किसी पार्टिकुलर डिवाइस के अकॉर्डिंगली नहीं बनाने, इनका क्या हुआ,
पोर्टेबल होने के पीछे बड़ा हाथ हुआ। दैट मीन्स अगर ये मशीन स्पेसिफिक होता तो फिर इसको किसी दूसरे पर हम लोग इसको ट्रांसफर नहीं कर पाते। कहता है कंपाइलर इन जावा इज रिटन इन ASCII विथ अ क्लीन पोर्टेबल बाउंड्री। कहता है इसको ASCII कोड को यूज करके बनाया गया और एक क्लीन बाउंड्री, दैट मीन्स कहीं से भी इंटरफेयर इसमें नहीं है, एकदम क्लियर है। विच इज अ पोसिक्स सबसेट, वो क्या करता है पोसिक्स सबसेट को यूज करके डेवलप्ड किया गया। नेक्स्ट आता है, कहता है कि रोबस्ट हमारा, रोबस्ट इन द सेंस जावा मेक्स एन एफर्ट टू एलिमिनेट एरर प्रोन सिचुएशंस। इसमें जब बनाया गया तो हम लोग को इस चीज को ध्यान में रखा गया कि इसके प्रोग्राम्स को कभी भी कोई एरर नहीं लगे। दैट मीन्स इसका डबल लेयर क्या होता है हमारा, चेकिंग होता है, वेरिफिकेशन होता है, एक कंपाइल टाइम, दूसरा रन टाइम। जब कोड लिख रहे हैं तब भी हम लोग उसको चेकिंग करेंगे और एक बार रन करके फिर हम लोग क्या करते हैं, इंटरप्रेटर जब इसको रन करता है कन्वर्ट करने के बाद से, तब हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं कि क्या रन टाइम कोई एरर दे रहा है। तो इस तरीके से जो इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, आर्किटेक्चर इसका है, वो क्या करता है, दो तरह के चेकिंग को हम लोग को प्रोवाइड करता है, कंपाइल टाइम चेकिंग एंड दूसरा रन टाइम चेकिंग, दैट मीन्स जब एग्जीक्यूट कर रहा हो तब। तीसरा कहता है मल्टी थ्रेडेड, मल्टी थ्रेडेड इन द सेंस कहता है कि अगर एक ही समय में अगर हम 3-4 तरीके के वर्क को परफॉर्म कर सकें तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि डे टू डे लाइफ में अगर हम देखेंगे तो ये पाएंगे कि एक ही बैंक में अगर एक ब्रांच में हम लोग जाएं तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट विंडोज हमारे होते हैं, जहाँ पे डिपॉजिट, अकाउंट ओपनिंग, देन आफ्टर क्या होता है हमारा विड्रॉवल्स, बहुत सारे वहाँ पे क्या होते हैं हमारे विंडो होते हैं। दैट मीन्स एक ही सॉफ्टवेयर पे हमको बहुत सारे अलग अलग टास्क को एक साथ साइमल्टेनियसली, दैट मीन्स एक साथ हमको परफॉर्म करना है, तो उस चीज को हम लोग क्या करें, समझें। कहता है इसका जो डिजाइन फीचर है, it allows the developers to construct interactive application that can run smoothly. Interactive, that means where we can connect with Java programming. Okay, that means Java का जो एप्लीकेशन होगा काफी इंटरेक्टिव होगा, लोग उससे जुड़ेंगे और एक साथ बहुत तरीके के काम कर सकता है, जिसके कारण से एक ही टाइम में एक गिवन टाइम स्पेसिफिकेशन उसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग उससे इंटरेक्टिव हो पाएंगे। फिर दूसरा कहता है इंटरप्रेटेड, जावा बाइट कोड जो होता है, जैसे हम लोग सोर्स कोड वी आर राइटिंग इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड। अगर हम लोग उसको क्या करेंगे, जब किसी भी सिस्टम पे रन करना पड़ता है तो उसके सोर्स कोड को पहले बाइट कोड यानी जेवीएम किस में बदलता है, बाइट कोड में बदलता है, और फिर बाइट कोड को क्या किया जाता है, एक हमारा नेटिव मशीन के ऑब्जेक्ट कोड में बदला जाता है। यानी कि जावा बाइट कोड को ट्रांसलेट जब किया जाता है तो वो नेटिव मशीन यानी जिस मशीन के पे हमको एप्लीकेशंस को रन करना है उसके अकॉर्डिंगली इसका क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। दैट मीन्स बाइनरी फॉर्म्स उसका यूज करता है, इट मे बी 32 बिट, 64 बिट, 128 और 256, किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट पे ये क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली कन्वर्ट किया जा सकता है इसके बाइट कोड को। तो ये किसका क्या होता है, बेनिफिट होता है। दूसरा कहता है द डेवलपमेंट प्रोसेस इज मोर रैपिड एंड एनालिटिकल, कहता है इसका जो डेवलपमेंट होता है काफी फास्ट होता है और एनालिटिकल, दैट मीन्स वो सिस्टम के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली एनालिसिस करता है और फिर इसको ट्रांसलेट करता है। सिंस द लिंकिंग इज एन इंक्रीमेंटल एंड लाइट वेट प्रोसेस, और जो लिंकअप होता है इसका जो बाउंडिंग होता है सोर्स कोड और बाइट कोड और ऑब्जेक्ट कोड और वो नेटिव मशीन्स का, ये काफी क्या होता है, इंक्रीमेंट फास्ट होता है और लाइट काफी हल्का प्रोसेस होता है, एकदम छोटा सा प्रोसेस होता है जो इसको क्या बनाता है, काफी हाई स्पीड बनाता है, जिसके इसका हाई परफॉर्मेंस इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। दैट मीन्स विद द यूज ऑफ जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जस्ट हम लोग इनपुट किए इसके कोड्स को कन्वर्ट करेगा, कंपाइल करेगा और मशीन के अकॉर्डिंगली करेगा और इसका परफॉर्मेंस को क्या करेगा, स्पीड अप कर देगा, बूस्ट अप कर देगा, जिसके कारण से हम लोग बोलते हैं कि जितने भी जावा के एप्लीकेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, हाई परफॉर्मेंस वाले होते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा कि डिस्ट्रीब्यूटिव, इसके जो हमारे सोर्स कोड और बाइट कोड हो गए हैं वो इतने कम स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवर इंटरनेट भी कहीं पे भी चाहे तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दैट्स मेक इट व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट वन डायनेमिक,
Dynamic in the sense we can change, or Java can change its programs at run time. That means कि अगर जावा का प्रोग्राम अगर हम लोग एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो वो मशीन के अकॉर्डिंगली क्या होगा, वो अपने आप में चेंजेस लाएगा. जो प्रोग्राम्स रन टाइम चेंजेस नहीं ला पाते हैं वो आउटडेटेड हो जाते हैं. सो जावा को क्या बनाता है, ये इसका ऑलवेज अप टू डेटेड बनाता है. दैट मीन्स कि जावा के जो प्रोग्राम्स होंगे वो उसमें जिस तरीके का भी हम लोग डिवाइस को अटैच करेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, उस पर रन करेगा. एंड it programs can carry extensive amount of runtime information that can be used to verify and resolve access to the object on runtime. इसका जो क्या होगा, आपका प्रोग्राम्स हो गए वो काफ़ी सारे इंफॉर्मेशंस को अपने साथ कैरी करते हैं. दैट मीन्स कैसा हमारा प्लेटफॉर्म मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली हमको क्या चेंज करना है. और वो रन टाइम क्या करते हैं, सारे बहुत सारे सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स जो आते हैं उसको हम लोग उसका सॉल्यूशन सर्च करके और उसके अकॉर्डिंगली क्या करता है, वो रिस्पॉन्ड करता है. अब तक की इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे. एंड थैंक यू फॉर दिस class, and we will also see some interesting features of Java like encapsulation, polymorphism, abstraction and inheritance, as well as object and classes. Thank you.